Hello everyone, welcome to my channel. Guys, in our previous video, we had discussed about the types of company on the basis of incorporation. In there, we had learned the statutory company and registered company, and we also discussed about the company on the basis of number of member or on the basis of ownership. Guys, in there we had learned the private company, public company and one person company. Now guys, in today's video we will discuss about the company which based on the liability of the member. Now guys, we can see on your screen there has the three kinds of the company which is based on the liability of the member. The first one is the company limited by shares, second the company limited by guarantee, and third unlimited liability cap company. Now guys, beside this we will also discuss about the company on the basis of control. Okay, in there we can see holding company and subsidiary company. Now guys, let's start with the company on the basis of liability of the member. Now guys, we can see on your screen there has the C points on the basis of liability of members in their first company has given the company limited by shares. Guys, this is a kind of company means in there the liability of the member is limited to the extent of the amount अनपेड मीन्स यहाँ पे मेंबर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड रहेगी, सिर्फ उतनी ही रहेगी जितनी उन्होंने अमाउंट अनपेड अपने शेयर की जितनी अमाउंट उन्होंने अनपेड करके रखी, मतलब नहीं दिए उन्होंने, जो भी उनके जो भी शेयर्स हैं उसकी जो अनपेड अमाउंट है दैट मच दे हैव टू पे, मीन्स दे आर लाइबल ओनली दैट मच मनी विच दे आर नॉट पेड, जो उन्होंने भरा नहीं है, दिया नहीं है कंपनी को. Okay, means this is the kind of company where the liabilities of member is limited to the extent of the amount not paid by the shareholder on their share. अपने shares की जो वैल्यू उन्होंने नहीं पे की है they are liable only that much money. Means at the time of the winding up members will be liable only until they pay the remaining amount. मतलब तब तक के लिए उन्होंने जो भी रिमेनिंग अमाउंट नहीं भरा है ऑफ देयर शेयर्स दैट मच दे हैव टू ओनली पे, वो लोग सिर्फ उसके लिए लायबल रहेंगे, उनको सिर्फ उतने ही पैसे भरने पड़ेंगे. मीन्स सपोज गाइस कि किसी ने क्या कि कंपनी के शेयर्स परचेस किए हैं, अब वो उसके जो भी अगर सपोज ने आधे पैसे दिए और आधे उसके बाकी रह गए हैं, ओके, या फिर 60% या 40% रिमेनिंग रह गया, तो वो अगर जब कंपनी वाइंड अप होगी तो जो 40% उसके रिमेनिंग है दे हैव टू पे दैट मच ओनली मनी, वो 40% उसको उसकी लायबिलिटी रहेगी और एक्स्ट्रा कोई भी फंड उसको नहीं देना पड़ेगा. एंड कंपनी कैन नॉट फोर्स टू हिम, कंपनी उसे फोर्स भी नहीं कर सकती टू पे द एक्स्ट्रा मनी. ना देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सेक्शन 222 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट दिस टाइप्स ऑफ companies have a share capital and the liability of each member is limited to the unpaid part of the face value of share purchased by member. Yes, this is the type of company जो एक ऐसी शेयर कैपिटल कंपनी होती है जो जहाँ पे जो लायबिलिटी होती है हर एक मेंबर की, each and every member's liability is limited to the unpaid part of the face value of their share which they has purchased. मतलब जो उन्होंने परचेस किए हैं जो भी शेयर्स उसकी फेस वैल्यू का जो भी अनपेड पार्ट है, मतलब जो उन्होंने नहीं भरा है, नॉट पेड, जो उन्होंने नहीं भरा है, दैट मस्ट दे हैव टू ओनली पे, सिर्फ उनकी लायबिलिटी वहीं तक लिमिटेड है. ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी और इन द इवेंट्स ऑफ वाइंडिंग अप अ मेंबर कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट. मतलब जब तक कंपनी चलती है, अगर कंपनी चल रही है तब भी क्या कर सकती है कंपनी कॉल कर सकती है, मीन्स इट इज़ कॉल्ड अप शेयर्स. कंपनी उनको कॉल करके शेयर्स की वैल्यू भरवा सकती है, ले सकती है. और एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप द मेंबर्स कैन बी कॉल्ड अपॉन टू पे द अनपेड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द शेयर्स परचेज बाय हिज और हिम और हर. मतलब उसने जो भी शेयर्स परचेज किए हैं उसके जो भी रिमेनिंग अमाउंट है कंपनी वो क्या कर सकती है, उसके लिए उसे कॉल कर सकती है और उसे पे करने के लिए बोल सकती है. ओके. Now guys, next is the a company limited by share by a public company. A company limited by share may be a public company or a private company. हाँ, yes, company limited by shares कोई भी हो सकते हैं, public company में भी हो सकता है और ये private company में भी हो सकता है. Okay, and these kinds of company are very popular
टूडेज फेनोमेना, मतलब आज कल के फेनोमेना में क्या है कि ये जो कंट्री, ये जो सिनेरियो चल रहा है उसमें ये काइंड की जो कंपनी है, मतलब जो लिमिटेड होती है बाय द शेयर्स ओनली, ये कंपनी बहुत ही पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट इज द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ना से कंपनी लिमिटेड गारंटी क्या है कि जितने की गारंटी होगी उतना ही लायबिलिटी होगा, मतलब जितने की गारंटी उसने दी है, किसी बंदे ने, कोई मेंबर है, जितने की गारंटी दी उसने देने की, उतना ही उसे लायबिलिटी देनी, उसकी उतनी ही लायबिलिटी बनेगी। मीन्स इन सम कंपनीज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ मेंशन अमाउंट ऑफ मनी दैट सम मेंबर्स गारंटी टू पे। जो कंपनी का मेमोरेंडम होता है उसमें कुछ अमाउंट्स पे किए, मतलब कुछ अमाउंट्स मेंशन होती है कि जो मेंबर ने क्या की है, ऐसे गारंटी दी है कि इतना अमाउंट हम पे करेंगे कंपनी के, तो वो मेंबर सिर्फ जो उसने गारंटी दी है वो सिर्फ उतनी अपनी गारंटी के लिए क्या रहेगा, लायबल रहेगा। मीन्स ही हैव टू पे दैट मच मनी, वो हाउ मच दे हैव गारंटेड, जितना उसने क्या किया है, गारंटी दिया है, उतना ही पे करने के लिए वो लायबल रहेगा। मीन्स एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप द मेंबर ऑफ द कंपनी ओनली लायबल टू पे ओनली द अमाउंट विच दे आर गारंटीड। समझ में आ रहा है? मीन्स एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज ओनली लायबल टू पे only that much amount which they are guaranteed, मतलब he have to only liable to pay that much money which they are guaranteed, मतलब जो उसने गारंटी किया हुआ है सिर्फ उसे वही पैसे भरने पड़ेंगे। और कंपनी और जो उसके क्रेडिटर्स रहेंगे, कंपनी एंड इट्स क्रेडिटर, दे कैन नॉट फोर्स, दे कैन नॉट कंपेल देम टू पे द एनी एक्स्ट्रा और मोर मनी। ओके, मतलब उसको कंपेल नहीं कर सकते। नो गाइस सी, जैसे और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे देखो क्लब्स हो गए। अभी क्लब्स ऐसी कंपनी होती है कि जहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी करते हैं कि हम इतने अमाउंट भरेंगे। रिसर्च एसोसिएशन हो गया, ट्रेड एसोसिएशन हो गए, सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, एंटरटेनमेंट हो गया, आर्ट्स हो गया, इन सब कल्चर में जो भी ऐसी जो कंपनीज होती हैं, इसमें क्या होता है, मेंबर्स क्या करते हैं, गारंटी देते हैं कंपनी को कि हाँ हम इन फ्यूचर इतने फंड कंपनी को देंगे। तो अगर उन्होंने एक गारंटी कर दिया तो उसके लिए ये सारी चीज़ें किसमें मेंशन हो जाती है, एक मेमोरेंडम में मेंशन हो जाती है, तो उन्हें वो देना पड़ता है। तो कंपनी उसके लिए क्या करेगी, उन्हें कॉल करेगी और वो बंदा, वो मेंबर ओनली दैट मच, उसी अमाउंट के लिए क्या होगा, ही इज़ लायबल ओनली फॉर दैट मच मनी, वो सिर्फ उस पैसे के लिए क्या होगा, लायबल होगा, मतलब उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी ही लिमिटेड होगी, उसकी गारंटी तक ही। नाउ सी व्हाट इज रिटन सेक्शन 221, दिस टाइप्स ऑफ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ शेयर कैपिटल, इनके पास इनके शेयर कैपिटल हो भी सकते हैं और नहीं भी। इच मेंबर प्रोमिसेस टू पे अ फिक्स सम ऑफ मनी स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेटेड ऑफ द कंपनी। यस, इस तरह के जो मेंबर्स होते हैं क्या कंपनी को क्या करते हैं, कंपनी को प्रॉमिस करते हैं, की गारंटी देते हैं कि भाई हम मतलब एक फिक्स मनी का गारंटी देते हैं कि हम इतना पैसा हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफाइड जो मनी होती है उसका एक मतलब वो लोग प्रॉमिस करेंगे, गारंटी देंगे कि हाँ ये हम जब कंपनी इन फ्यूचर हम कंपनी में क्या करेंगे, कंपनी के एक्सरसाइज के लिए या एक्सपांड के लिए हमें पैसे कंपनी में देंगे, ये उन्होंने गारंटी कर दिया। एंड दैट थिंग विल बी नोटिस इन द नोटिस इन द मेमोरेंडम। ये क्या हो जाए, किस में नोटिस होगा, ये किस में मेंशन होगा, इन द मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी। सो एट द टाइम ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी के जो भी वो रहेंगे डेट्स पेमेंट करने रहते हैं, तो उन सब के लिए कंपनी क्या कर सकती है, इनसे रिकवरी कर सकती है। ओके, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, कंपनी का एक तरह से मतलब उनकी लायबिलिटी होगी, मतलब कंपनी सिर्फ उस चीज़ के लिए लायबल हो जाएगी, सिर्फ अपनी गारंटी के लिए लायबल रहेगी। अदरवाइज कंपनी एक्स्ट्रा मनी फोर्स नहीं कर सकती, मतलब एक्स्ट्रा मनी के लिए वो मेंबर्स को अपने फोर्स नहीं कर सकती। बट हाँ, मेंबर्स ने जितनी गारंटी की है उतने पैसे उन्हें देने पड़ेंगे, मतलब दे आर ओनली लायबल बाय फॉर देयर गारंटी। ओके, नाउ सी गाइस व्हाट हैज रिटन। Okay, these types of company may or may not have a share capital. Each member promises to pay a fixed sum of money specified in the memorandum in the event of liquidation of the company for the payment of debt and liability of the company. मतलब ऐसे जो members रहेंगे they are only liable to pay the guaranteed amount, सिर्फ गारंटी अमाउंट के लिए वो क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। और ये क्यों कंपनी उनसे लेगी, फॉर द पेमेंट्स ऑफ देयर डेट्स, मतलब कंपनी के जो भी डेट्स है, जो भी कर्जे हैं और जो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज है उसको रिकवर करने के लिए
कंपनी क्या करेगी, जो गारंटेड अमाउंट है वो रिकवर करेगी बाय दी मेंबर्स से लेके। जनरली सच कंपनीज आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बिकॉज दे आर फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन। ऐसी जो कंपनी होती है दे आर नॉट प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, ये प्रॉफिट मेकिंग होती है, ये नॉन प्रॉफिट कंपनीज होती हैं और ये दे वर्क ओनली फॉर द प्रमोशन ऑफ द सोसाइटी। ये किसी कंपनी किसी सोसाइटी किसी प्रमोशन के लिए वर्क करती है, जैसे हो गया आर्ट्स, साइंस, कल्चर, चैरिटी, स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा। Okay, now guys, you can see on your screen there has the third kinds of the company has given unlimited liability company. According to section 292, a company not having any limit on the liability of its member. Yes, this is a kind of a company which have no limit on their members liability. मतलब ये ऐसी कंपनी होती हैं there has no any limit on the liability of the member. Hence the company can use all the personal assets of their शेयर होल्डर। यहाँ पे कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर होल्डर के जितने भी पर्सनल असेट्स हैं, पर्सनल असेट्स पे, पर्सनल प्रॉपर्टी पे क्या कर सकती है, कंपनी अटैक कर सकती है। ओके, सो टू मीट इट्स डेट एंड लोन, मतलब कंपनी अपने डेब्ट्स को रिकवर करने के लिए, टू पे द डेब्ट्स एंड लायबिलिटी, जो भी लोन्स लिए हैं कंपनी को उन्हें रिकवर करने के, उन्हें पेड करने के लिए कंपनी क्या कर सकती है, सेल, और कंपनी कैन यूज all the personal assets of the shareholder, okay, at the time of the winding up, means their liability will extend to the company's entire debt, मतलब कंपनी के जो भी डेब्ट्स रहेंगे उनकी लायबिलिटी वहाँ तक होती है। मीन्स कंपनी के जो भी डेब्ट रहेंगे, जो भी कंपनी की लायबिलिटीज रहेंगी, वो रिकवर करने के लिए, वो पेमेंट करने के लिए शेयर होल्डर की पर्सनल असेट्स भी क्या हो सकती है, सेल हो सकती है। ओके, मीन्स दे हैज़ अ अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। यहाँ पे शेयर होल्डर की लायबिलिटी कैसे होगी, अनलिमिटेड होगी। सो दिस काइंड्स ऑफ द कंपनी आर नॉट, ये जो कंपनी है ये अब इंडिया में पॉपुलर नहीं है बिकॉज यहाँ पे शेयर होल्डर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। Now guys, see what is written. Section 292, a company not having any limit on the liability of member is termed as the unlimited company. Yes, because there has no any limit. यहाँ पे there has no limit of the liability. liability कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड हो सकती है। That's why it is called as the unlimited liability. The members are fully liable to cover the debt of the company. Members क्या होंगे, fully liable रहेंगे, मतलब कि कितनी भी उनकी लायबिलिटी हो सकती है, बिकॉज दे हैव टू कवर द ऑल द एंटायर डेप्ट ऑफ द कंपनी। जो भी डेट है कंपनी के, जो भी लायबिलिटीज है, उसको पूरा कवर करना है, तो चाहे उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना सेल हो जाए। और एंड गाइज द अनलिमिटेड कंपनी कैन बी प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और वन पर्सन प्राइवेट कंपनी। ओके गाइज, नाउ गाइज अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी which has the unlimited liability. Now guys, let's see the D point on the basis of control. Okay guys, on the basis of control we can see on your screen holding company and subsidiary company according to section 246 के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं, मीन्स अ कंपनी शेयर्स माइट बी हेल्ड फुल्ली या पार्टली, मतलब कुछ ऐसी कंपनी होती है जिनके शेयर्स जो होते हैं ना वो फुल्ली या फिर पार्टली क्या होते हैं, होल्ड होते हैं, मतलब हेल्ड किए जाते हैं बाय दी अनदर कंपनी। मीन्स कोई कंपनी क्या करेगी, किसी कंपनी के जो भी शेयर्स रहेंगे उसके 50% या फिर पूरा क्या करती है, वो होल्ड कर लेती है, मतलब ले लेती है, उसको चलाती हैं। मीन्स क्या होता है, तो जो ऐसी जो ओविंग कंपनी होती है, जो ऐसी ओविंग कंपनी होती है, मतलब जिन्होंने जो हेल्ड कर रही है, दिस कंपनी owns the shares of the another company, that's why they become the holding or parent company. मीन्स जैसे दो कंपनीज हैं, ओके, जो कंपनी किसी कंपनी के, जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को फुल्ली या फिर पार्टली हेल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है, ओके, तो वो क्या बन जाती है, इट बिकम द ओविंग कंपनी, इट बिकम द होल्डिंग कंपनी, इट बिकम द पेरेंट कंपनी। ओके, समझ में आ रहा है गाइस? सो जो ऐसी कंपनी होती है वो क्या बन जाती है, होल्डिंग कंपनी। वो उसकी कंपनी को कंट्रोल करती हैं बाय द कंट्रोल बाय द डायरेक्टर्स, जो भी उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन पर कंट्रोल करेगी, अपने अकॉर्डिंग उस कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखेगी। ओके, now guys see what has written. A holding company is a company which hold more than 1/2 of the total share. मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जो कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स होल्ड कर लेती हैं।
समझ में आ रहा है? ये ऐसी होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के जो शेयर्स रहेंगे उसके मतलब आधे से ज़्यादा, मोर देन वन हाफ, मतलब आधे से ज़्यादा मतलब 50% से ज़्यादा, मोर देन 50% शेयर दे होल्ड, ये होल्ड करती हैं। ओके, किसी और कंपनी के। और जो उसके पावर्स रहेंगे, मतलब जो भी कंपनी के पावर्स रहेंगे वो किसके हाथ में आ जाएंगे? होल्डिंग कंपनी के, बिकॉज वो क्या कर रही है? उसे होल्ड कर रही है। सो दे हैज़ द पावर टू कंट्रोल ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो उनको पावर क्या मिल जाएगा? ये किसी को भी, जो भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स रहेंगे, कंपनी में जो भी मेंबर्स रहेंगे उसको अपॉइंट करने के या फिर उसको रिमूव करने के, और जो डायरेक्टर्स जो रहेंगे उनको अपॉइंट करना, रिमूव करना, ये सारे पावर किसके हाथ में आ जाएंगे? किसी अनदर कंपनी के जो होल्ड कर रही है। समझ में आ रहा है? जो होल्ड कर रही है उसके हाथ में सारे पावर आ जाएंगे। अब गाइज, जो अनदर कंपनी है, जो दूसरी कंपनी है जिसके 50% शेयर्स, जिसकी ज़्यादा 50% ज़्यादा शेयर्स क्या हो रहे हैं? होल्ड हो रहे हैं। हाँ, वो कंपनी क्या बन जाती है? वो बन जाती है सब्सिडायरी कंपनी, विच इज़ आवर सेकेंड टॉपिक। पहली कंपनी जो होल्ड कर रही है शेयर्स को, किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स को वो होल्ड कर रही है, वो बन गई होल्डिंग कंपनी, वो बन गई ओनर, ओविंग कंपनी बन गई, वो उसको चला रही है। बट जिस कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है वो कंपनी क्या बन जाएगी? इट बिकम द सब्सिडरी कंपनी। समझ में आ रहा है गाइस? मीन्स द कंपनी हु शेयर्स द पेरेंट कंपनी ओन्स, मतलब द कंपनी हु शेयर्स द होल्डिंग कंपनी ओन्स, जिसके शेयर्स होल्डिंग कंपनी ओन्स करती है, मतलब उसको चलाती है, उसके ऊपर अपना उसने अथॉरिटी दिखा दिया है, इट बिकम इट्स सब्सिडारी कंपनी। समझ में आ रहा है? मीन्स द कंपनी हु शेयर्स द पेरेंट कंपनी ओन्स, इट बिकम दिस सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के ऊपर अपना ओनरशिप दिखाती है, जो दूसरी कंपनी है, वो कंपनी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। ओके, एंड होल्डिंग कंपनी क्या करती है? अभी ये सब्सिडारी कंपनी जो होती है, इसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में रहता है? होल्डिंग कंपनी के ना। गाइस, द सब्सिडारी कंपनी इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। यस, सब्सिडारी कंपनी क्या है? इट इज़ द जस्ट अपोजिट ऑफ द होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी की अपोजिट है। क्यों? क्योंकि होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसने जिसने अपने हाथ में कंट्रोल ले लिया किसी और कंपनी का, और सब्सिडारी कंपनी वो होती है जो किसी और के कंट्रोल में आ गई। ओके, इट इज़ अ कंपनी विच कंट्रोल बाय द होल्डिंग कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो होल्डिंग कंपनी के कंट्रोल में होती है। सच कंट्रोल इज पॉसिबल बिकॉज द होल्डिंग कंपनी परचेस मोर देन वन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। अब ये कंट्रोल पॉसिबल क्यों होता है? बिकॉज होल्डिंग कंपनी ने क्या किए? सब्सिडरी के 50% से ज़्यादा शेयर्स क्या कर लिए? पर अपने कंट्रोल में ले लिए। क्या कर लिया उन्होंने? मतलब 50% से ज़्यादा शेयर्स उन्होंने क्या कर लिया? अपने कंट्रोल में ले लिया है। सो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द सब्सिडरी कंपनी, और हैज़ पावर टू अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। उसके पास पावर भी होता है क्या करने का? जो भी डायरेक्टर्स है उनको अपॉइंट करने का और रिमूव करने का। नो गाइज, देयर आफ्टर देयर हैज़ द फिफ्थ पॉइंट, ई पॉइंट, अदर टाइप्स, and there has also the different kinds of the companies. Okay, now guys, in there has this total 7 kinds of the companies, but that will discuss in the next video. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.